وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا مائسہ ابراہیم خان کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے انداز میں عجلت تھی، جبکہ دماغ بری طرح تھکا ہوا تھا۔ 2 دن اس نے پورے 2 دن تک اپنی شہزادی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ پورے 2 دن وہ اس سے دور رہا تھا۔ اسے اس بات کا غصہ تھا کہ اتنی محنت کے باوجود وہ اسے پوری طرح حاصل نہیں کر سکا تھا۔ 4 سال اس نے خود پر ضبط باندھے تھے۔ 4 سال اس نے اس کو خود سے دور رکھا تھا، صرف اور صرف اس کی بھلائی کے لیے۔ اب جب وہ اس کے سامنے تھی تو وہ خود کو اس کے قریب جانے سے روک نہیں پاتا تھا، اور نہ ہی ایسا کرنا چاہتا تھا۔ جو اس کا تھا وہ اسی کا رہے گا، کسی بھی طرح۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھولتا وہ بے دھڑک اندر داخل ہوا۔ وہ جو آرام سے بیڈ پر بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھی، اچانک اس کی آمد سے ڈر گئی۔ اس نے جلدی سے اپنے سر پر جمے دوپٹے کو اپنے پورے وجود پر اچھے سے پھیلایا اور قرآن مجید کو لحاف میں رکھنے لگی۔ سگریٹ سلگاتا وہ اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں موجود چوڑیوں کی آواز اسے بہت لطف دے رہی تھی۔ کھانا کھا لیا؟ سگریٹ ہونٹوں میں دبائے کوٹ اتارتے ہوئے اس نے پوچھا۔ ابھی نہیں۔ ایک نظر اسے دیکھ کر وہ سر جھکا گئی۔ وہ قرآن پڑھ رہی تھی تاکہ اس کے دل کی حالت بدل جائے، اس کی سوچوں کو صحیح راستہ مل سکے، لیکن اس کی آمد نے سب بیکار کر دیا تھا۔ کالے کلر کا کوٹ پینٹ اس کے خوبصورت سراپے کو اور بھی وجیح بنا رہا تھا۔ لمبے بال پیشانی پر بری طرح بکھرے ہوئے تھے۔ چہرے سے کام اور سفر کی تھکاوٹ ظاہر تھی، پھر بھی اس وقت اس کی سوچوں میں تلاطم پیدا کرنے کے لیے وہ اس کے کمرے میں موجود تھا۔ اس کی نظر جھکانے پر وہ غصے سے آگے بڑھا اور اس کی ٹھوری کو مضبوطی سے تھام کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اس کے سر اٹھانے پر اس کا دوپٹہ ڈھلک کر کندھے پر آ ٹکا، جسے اس نے پھرتی سے تھام لیا۔ دلکشی سے مسکراتا وہ اس کی طرف جھکا۔ کچھ لمحے اس کی بھوری آنکھوں میں خوف کی لہر کو اٹھتا ہوا دیکھتا رہا، پھر اپنے داہنے ہاتھ میں دبی سگریٹ کو اس کے داہنے کان کے نیچے سراہی دار گردن پر نظر پڑتے ہی بے دردی سے اس پر رکھ دیا۔ جلن کی شدت سے اٹھتی اپنی چیخ کو گلے میں ہی دباتی وہ سسک اٹھی۔ ضبط کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تمہیں تکلیف دینے میں مزہ آتا ہے، گھبراؤ مت۔ جب تم پوری طرح میری ہو جاؤ گی تو صرف اور صرف محبت کروں گا تم سے، کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ اس کو اپنی گرفت سے آزاد کرتا وہ مزے سے بولا، تیار ہو کر نیچے آؤ، کھانے پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ نہ سننے کا موڈ نہیں ہے میرا۔ اپنی کوٹ بیڈ سے اٹھاتا اسے دھمکا کر وہ باہر نکل گیا، اور یہاں وہ بیڈ پر بیٹھی اس کے دیے زخم پر بلک اٹھی۔ اس کے لمبے بالوں کو چوٹی بناتی فاطمہ نے اس کی داہنی طرف کی گردن پر موجود سگریٹ کے دیے گئے اس تازہ زخم کو بہت غور سے دیکھا۔ اچانک ہی اس کے دل میں اپنی معصوم سی دوست کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا۔ نہ جانے یہ شخص کیا چاہتا تھا، کیوں اسے تکلیف دیتا تھا، نہ جانے مائسہ ابراہیم خان کی قسمت میں کیا لکھا تھا۔ لمبی سانس لے کر مائسہ نے آئینے میں دکھتے فاطمہ کے عکس کو دیکھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں خود کے لیے ہمدردی دیکھ چکی تھی۔ مجھے پتا ہے تم کیا سوچ رہی ہو، وہ میرے قریب آنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، مجھے زخم دے کر اسے شاید سکون ملتا ہے۔ میں یہ سب اب اور برداشت نہیں کر سکتی، میں خود کو مجرم سمجھنے لگی ہوں، اب مجھے خود سے نفرت ہونے لگی ہے فاطمہ۔ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے چہرہ چھپائے وہ سسک اٹھی۔ نہیں مائسہ، بالکل نہیں، میں تمہارے بارے میں کبھی غلط سوچ دل میں نہیں رکھتی۔ اللہ جانتا ہے کہ تم مجبور ہو، تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ تمہیں کبھی اس غلطی کی سزا نہیں دے گا جو تم نے کی ہی نہیں۔ فاطمہ نفی میں سر ہلاتے اس کے سامنے بیٹھی اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی، اور اگر میں کچھ لمحوں کے لیے بہک گئی تو کچھ لمحوں کے وہ احساس جو اس کی قربت میں میرے دل میں پیدا ہوئے، تو کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ خود کو سنبھالتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور میچنگ شیڈڈ دوپٹہ اپنے سر پر ٹکا کر پورے وجود پر اچھے سے پھیلا لیا۔ گلابی اور نارنگی رنگ کا کمبینیشن، ٹخنوں تک جاتا انارکلی، ہاتھوں میں گنتی کی چوڑیاں اور کانوں میں سونے کی بالیاں پہنے بیزار سی شکل لیے وہ اس درندے کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھی۔ کمرے سے باہر نکلی تو سیڑھیوں پر مینا اس کا انتظار کرتی نظر آئی۔ اس نے فاطمہ کو ساتھ آنے سے منع کر دیا تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے وہ کسی پریشانی میں گھرے۔ دھیرے دھیرے سیڑھیاں اترتی وہ گھبرا رہی تھی، نئے لوگوں کا سامنا کرنا تھا، نہ جانے وہ لوگ کیسے ہوں گے اور اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔
वो लोग जो शायद उससे शदीद नफरत करते थे। दरवाज़ा खुलने पर अपनी घबराहट पर काबू पाती वो अंदर दाखिल हुई। एक बड़ा सा खूबसूरत हॉल नुमा कमरा था, जिसके बीच में एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल रखा था, जिस पर एक से बढ़कर एक खाने के लवाजमात खूबसूरती से सजे हुए थे। टेबल पर दाहिनी तरफ लुबना बेगम बैठी थी। उनके बगल में एक खूबसूरत सी लड़की थी जो शायद 20 साल से ज़्यादा की ना थी, जबकि दूसरी लड़की उससे भी छोटी थी, शायद 16-17 साल की। लुबना बेगम के ठीक सामने 20 साला नौजवान लड़का बैठा था, जो दिखने में थोड़ा बहुत सदाम जैसा था। उसके बाद हमीम जहांगीर शाह बैठा था। हेड ऑफ द फैमिली की कुर्सी पर सदाम जहांगीर शाह पूरे तमतराक के साथ विराजमान उसी को देख रहा था। उसकी आंखें माइसा को अपने अंदर घुसती हुई महसूस हो रही थी। उसके कमरे में दाखिल होते ही सन्नाटा छा गया था। घर के फर्दों के दरमियान नौकर भी उसे आंखें फाड़े देख रहे थे। आओ बैठो। सदाम के कहने पर वो आगे बढ़ी और छोटे वाली लड़की के पास जाकर बैठ गई, जिसके ठीक सामने हमीम बैठा था। ये मेरी माँ है लुबना जहांगीर, ये मेरा छोटा भाई अरहाम शाह, ये दोनों मेरी छोटी बहनें नेहा और रिदा, और ये है मेरी छोटी माँ शबनम। सबका तारुफ कराते गहरी नजरों से वो उसी को देख रहा था। जबकि वो उसकी नजरों से जुज़बुज़ होती धीरे से सर हिला गई। अरहाम ने उसे बस एक नज़र देखा था। नेहा ने उसकी तरफ नरम सी मुस्कुराहट उछाल दी, जबकि रिदा के चेहरे पर वो अपने लिए नापसंदीदगी साफ देख सकती थी। जहाँ तक मुझे लगता है हम पहले भी मिल चुके हैं। दिलकश सी मुस्कुराहट होंठों पर सजाए हमीम जहांगीर शाह ने उसे देखा। और ये है मेरी माँ, यानी सदाम की छोटी माँ। अपने पास बैठी खूबसूरत सी औरत की तरफ उसने इशारा किया, जो उसे देखते ही मुस्कुरा दी। सदाम जहांगीर शाह की भवें हमीम जहांगीर शाह की बात पर तन गई। ये पहले भी मिल चुके हैं? कैसे? कब? गुस्से से उसकी रगें तन गई। लाखों वसवसे उसके दिमाग में दौड़ने लगे थे। अचानक ही उसका दिल खाने से उचाट हुआ। वो काफ़ी हसास था अपनी चीज़ों को लेकर, किसी हद तक जनूनी भी। उसकी आदत थी कि जो चीज़ उसकी थी किसी की नहीं होने देता था, चाहे वो कोई चीज़ हो या कोई इंसान। उसके आसपास रहने वाले लोग भी उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते थे। जिस तरह वो अपनी फैमिली से मोहब्बत करता था, इसी तरह अपने गांव के लोगों के लिए भी फ़िक्र करता था, उनकी ज़रूरियात का ख़याल रखता। गांव वाले भी उसकी बहुत इज्जत करते थे, चाहे खौफ से ही सही, लेकिन उसके बाप की तरह वो उससे नफ़रत नहीं करते थे। और यहाँ तो माइसा इब्राहिम खान की बात थी, जिसे उसने इतनी मुश्किल से हासिल किया था। किसी और की नज़रें वो उस पर कैसे बर्दाश्त कर लेता। माइसा ने मुस्कुराकर सबको देखा और खाने की चीज़ों पर नज़रें दौड़ाने लगी। सब्जियों पर मुश्तमिल खाने देखकर उसके मुंह का जायका ख़राब हो गया। शायद यहाँ सब सब्ज़ी खाते थे और उसकी सब्जियों से खासी दुश्मनी थी। भूखी पेट रह जाती लेकिन सब्ज़ी को हाथ ना लगाती। मुलाजमा ने उसकी प्लेट में 3 तरह की सब्जियां रखी, तो ना चाहते हुए भी उसने खाने को हाथ लगाया। पहला निवाला मुंह में रखते ही उसकी नाक नापसंदीदगी से सिकुड़ गई। उसे शिद्दत से चिकन बिरयानी और मटन कोरमा की याद आई। खाना अच्छा नहीं लगा क्या? हमीम की आवाज़ पर उसने नज़रें उठाकर देखा। सब उसी को देख रहे थे। आदत के मुताबिक दुपट्टे को सर पर दरुस्त किया और नफ़ी में सर हिलाकर खाने की तरफ मुतवज्जो हुई। खाने के दौरान बिल्कुल सन्नाटा था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सिर्फ कांटों और चम्मच के आपस में टकराने की आवाज़ें आ रही थी। भाई को खाने के दौरान बात करना पसंद नहीं। रिदा उसके कान में घुसघुसा कर बोली तो उसने नज़रें उठाकर देखा। नेहा उन दोनों को ही घूर रही थी। वो ऐसा क्यों था? अपनी माँ बहनों से इतनी सर्द मोहरी, इतनी दूरी की वजह क्या थी? अपनी माँ बहनों से इतनी सर्द मोहरी, इतनी दूरी, जैसे कि वो गैर हो। उसे याद आया कि कैसे उसके घर में खाने के वक्त शोर शराबा बरपा रहता था। लोग एक दूसरे से बातें, हंसी ठिठोलियाँ करते, खाने का लुत्फ लेते थे, जबकि यहाँ सब अपनी ही ज़ात में डूबे थे। अचानक ही उसे अपना दम घुटता महसूस होने लगा। वो जल्दी से अपने कमरे में आई और मीना ने बताया कि वो खाना खाकर क्वार्टर में चली गई। वो कपड़े चेंज करने के लिए ड्रेसिंग रूम में चली आई। थोड़ी देर बाद पीले कलर का ढीला सा शलवार सूट पहने वो बाहर निकली तो मीना जा चुकी थी। आईने के सामने खड़ी अपने लंबे बालों को सुलझा रही थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वो लंबी सांस अंदर खींचती समझ गई कि कौन हो सकता है। सदाम जहांगीर शाह के अलावा। बालों को जूड़ा बनाती वो दरवाजे की तरफ बढ़ी और दोबारा दस्तक होने से पहले दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन सामने सदाम की बजाय हमीम को खड़ा देखकर वो हैरान हुई। अपनी भूरी आंखों में नरम गरम सा तासुर लिए वो धीरे से मुस्कुरा दिया। शायद तुम्हें खाने से ज़्यादा मीठा पसंद आ जाए।
उसकी तरफ ट्रे बढ़ाता हुआ वो बोला, जिस पर ढक्कनदार चांदी का बाउल रखा था। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ ट्रे उसके हाथों से ले ली और उसके जाते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। ट्रे साइड टेबल पर रखकर वो उसकी बातें ज़हन में दोहराती वहीं बैठ गई। बिलाशुबा वो एक दिलकश मुस्कुराहट का मालिक था। जब उसने ढक्कन खोलकर बाउल में खीर को देखा तो उसके होंठों पर भी मुस्कुराहट रेंग गई। उसे खीर बहुत पसंद थी। ठंडी खीर का मज़ा लेते हुए उसकी हमीम के बारे में सोच बिल्कुल बदल गई। वो इतना बुरा नहीं था जितना उसे पहली मुलाकात में लगा। शायद उसकी मौजूदगी से उसके दिल में उन सर्द मोहर लोगों में अपनायत का एहसास पैदा हो जाए। आखिरी चमचा मुंह में डालते हुए उसने खुद से वादा किया कि हमीम को इस मज़ेदार खीर के लिए शुक्रिया ज़रूर अदा करेगी। वो मुस्कुराकर धीरे से उठी और बेड की साइड टेबल के दराज से मोमबत्ती और माचिस निकाल कर मोमबत्ती जलाई। उसे सोते वक्त बल्ब की बजाय मोमबत्ती की रोशनी ज़्यादा पसंद थी, न जाने क्यों। मोमबत्ती स्टैंड में लगाने के बाद वो कमरे की सभी लाइट्स ऑफ करके दुपट्टा दुरुस्त करती बेड पर आकर सोने की तैयारी करने लगी। सारी रात बेचैनी से बेड पर करवटें बदलता रहा, लेकिन नींद थी कि आने का नाम नहीं ले रही थी। आखिरकार वो झुंझलाता हुआ उठ बैठा, सर झुकाए, बालों में उंगलियां फंसाए। वो अपनी ही सोचों से परेशान था। हमीम और माइसा एक दूसरे को कैसे जानते हैं? वो कब मिले, कैसे मिले? क्या इस बार भी वो जलील इंसान उससे उसकी खुशी छीन लेगा जैसे वो हमेशा करता आया है? क्या वो उसके बिना रह पाएगा? कैसे सांस लेगा अगर वो उसकी जिंदगी से चली गई तो? सदाम एक झटके से अपनी जगह से उठा और नंगे बदन पर पतले कपड़े की शर्ट पहनता कमरे से बाहर आ गया। उसका रुख माइसा के कमरे की जानिब था। उसकी चाल बेचैनी और बेसकून थी। रात के इस पहर वो बस उसे देखना चाहता था। दरवाजे का नॉब घुमाता वो धीरे से अंदर दाखिल हुआ। उसके मरमरी से वजूद की महक पूरे कमरे में फैली थी। लंबी सांस लेकर उस खुशबू को अपने अंदर उतारता वो इस तरह बेड की तरफ बढ़ा जिस तरह शहद की खुशबू सूंघकर भालू करता है। बेड के सरहाने पर मोमबत्ती रोशन थी, जिसकी रोशनी उसके खूबसूरत से चेहरे का अहाता किए हुए थी। उसे याद आया कि वो मोमबत्ती जलाकर सोने की आदत थी। अजीब लड़की थी ये। बेड के पास खड़ा उसके दिलकश से चेहरे को गौर से देखते हुए उसके दिल ने एक बीट मिस की थी। वो धीरे से उसके पास बैठकर उसे सोता हुआ देखने लगा। सोते हुए भी वो मासूम परी दुपट्टे से अपने वजूद को अच्छी तरह छुपाए हुए थी। वो उसकी एहतियात पर मुस्कुरा दिया। उसकी यही अदा उसे बहुत पसंद थी कि वो दूसरों को, वो खुद को गैर की नज़रों से छुपाए रखती थी। उसके सिरहाने जलती मोमबत्ती को उसने देखा। खुदा ना खास्ता ये इस पर गिर गई या झटके से उसका हाथ उस पर लग गया तो? उसकी कम अक्ली पर वो सर झटकता आगे झुका और फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा दी। उसके वजूद पर नज़रें जमाए वो यकटुक उसे देखता रहा। वो उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था। वो एक पल भी उसके बिना नहीं रह सकता था। वो सिर्फ उसकी थी। गहरी नज़रों से उसे देखता वो झुका और उसके सोए हुए वजूद को एहतियात से अपने मजबूत हाथों में उठा लिया। उठाने की वजह से उसका दुपट्टा एक तरफ ढलक गया और उसके बरहना बाजू उसकी नज़रों की जद में आ गए। वो जल्दी से उसका दुपट्टा दुरुस्त करता उसे लिए कमरे से बाहर निकल आया। शुक्र था कि वो गहरी नींद की मालिक थी, वरना हंगामा बर्पा कर चुकी होती। राहदारी बिल्कुल सुनसान थी। वो उसे आराम से उठाए अपने कमरे में ले आया और बड़ी एहतियात के साथ उसके वजूद को अपने जहाज़ी साइज बेड पर लेटा दिया। उसके ऊपर चादर डालता वो उसके पास ही बैठ गया। उसे उसकी आंसू भरी आंखें बहुत पसंद थी, लेकिन इस वक्त वो सोते हुए इतनी खूबसूरत मासूम लग रही थी कि वो उसको छेड़ने का इरादा तर्क कर गया। वो जब भी उसके साथ होती या तो डरी हुई होती या रो रही होती या आंखों में बेपनाह नफरत लिए उसे इस तरह देखती जैसे वो दुनिया का सबसे बुरा और जालिम इंसान हो। हाँ, शायद वो कुछ हद तक सही भी थी, लेकिन वो उसकी ज़ुबान से अपने लिए अल्फाज सुनना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे तकलीफ़ होती थी। वो उसे मुस्कुराते हुए देखना चाहता था, जैसे वो उसे पहली बार देखकर मुस्कुराई थी। एक नर्म गर्म सी खूबसूरत सी मुस्कुराहट। वो उठने ही वाला था कि उसकी नज़र उसके सफ़ेद बेदाग गर्दन पर मौजूद उस जले हुए निशान पर पड़ी जो उसी का दिया हुआ था। उसे मालूम था कि उसे तकलीफ हुई होगी। वो उसे दर्द नहीं देना चाहता था, लेकिन ऐसा करना भी ज़रूरी था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उसकी तरफ आंख उठाकर गलत नीयत से देखे। वो सिर्फ उसकी थी और उसे देखने का हक भी सिर्फ उसी को था। गुड नाइट स्वीट लिटिल जो। उसके दुपट्टे को दुरुस्त करता वो धीरे से बोला और उठकर बेड साइज सोफे पर जाकर सो गया।
फजर के वक्त फातिमा की आंख खुली। वो झटके से उठी और दीवार गिर घड़ी की तरफ देखा। जमात खड़ी होने का वक्त हो चुका था। जमाही रोकती उसने आसपास नजरें दौड़ाकर अपनी माँ को ढूंढा ताकि उन्हें जगा सके, लेकिन बेड बिल्कुल खाली था। उसके जहन में झमाका सा हुआ। वो अब अपनी माँ को कभी नहीं देख सकती थी। अफसुर्दगी से उसने सर झटका और बेड से उतरकर वॉशरूम की तरफ गई। मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारती वो अपने सोए ज़हन को जगाने की कोशिश करने लगी। तुम्हें बहादुर बनना होगा बेटी, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी दोस्त माइसा के लिए भी, जो तुम्हें बहन की तरह अजीज़ है। वो बहुत हसास और नाजुक है। माँ की बातें उसके सोए हुए जहन पर ज़रब की तरह लगी थी। वो उस वक्त उसके साथ थी जब वो अपनी माँ को खो देने का शोक मना रही थी, और अब सदाम जहांगीर शाह उसे तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। नमाज से फारिग होकर वो चादर लेती कमरे से बाहर निकली। पूरी हवेली में सन्नाटा छाया हुआ था। चादर दरुस्त करती वो तेजी से माइसा के कमरे को जाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त उसे याद आया कि माइसा ने ठीक से खाना नहीं खाया होगा, उसे भूख लगी होगी। वैसे भी उसकी आदत थी फजर की नमाज अदा करने से पहले कुछ खाने की। उसके कमरे में जाने का इरादा तर्क करके वो किचन की तरफ मुड़ गई ताकि उसके लिए कम से कम एक गिलास दूध लेती जाए। वो गर्म दूध ग्लास में निकाल ही रही थी कि उसे अपने पीछे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी कंधे पर बड़ा सा थैला लिए किचन के दरवाजे पर खड़ा था। फातिमा को अपना खून जमता महसूस हुआ जब उसने उस शख्स को हाथ में चाकू लिए अपनी तरफ बढ़ते देखा। इससे पहले कि वो उस पर हमला करता, किसी ने पीछे से उसके सर पर जोरदार वार किया। अचानक हमले से वो संभल ना सका और लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर गया। ज़मीन पर गिरते ही उसके कंधे पर मौजूद थैला भी ज़मीन पर गिरकर खुल गया। रोटी, साग, सब्जियों और कुछ रुपयों से भरा। वो उसके सामने कुछ और कहानी बयान कर रहा था। सरकार, सरकार, मुझे माफ़ कर दो सरकार, मुझे जाने दो सरकार, मेरे बीवी बच्चे 3 दिन से भूखे हैं सरकार, रहम करो, खुदा के लिए रहम करो। ज़मीन पर गिरा शख्स गिड़गिड़ाता अपने सामने खड़े शख्स से माफ़ी मांग रहा था। उसके आंसू सच को बयान कर रहे थे। तुम एक चोर हो और कुछ नहीं। तुम्हें पता है हमारे यहाँ चोरों की माफ़ी नहीं है। सामने खड़ा शख्स उसके सर पर बंदूक की नाल लगाता बेरहमी से बोला। इससे पहले कि वो गोली चला देता, फातिमा ज़ोर से चीखी, रुक जाए, रुक जाए, मत मारे इसे। वो आगे बढ़ती बोली, वो आदमी एक चोर था तो इसमें उसकी गलती नहीं थी, हालात ने मजबूर कर दिया है इसे ऐसा करने को। बंदूक थामे उस शख्स ने गर्दन घुमाकर फातिमा की आंखों में देखा। फातिमा उसे पहचान गई थी। वो सदाम जहांगीर शाह का दायां बाजू फाइक था। और तुम्हें किसने चोरी का हक दिया है? और तुम्हें किसने हक दिया है मुझे रोकने का? वो उस पर भवें ताने सपाट लहजे में बोला। इसी शख्स ने, जिसने आपको मारने का हक दिया है। ये बस अपने बीवी बच्चों को खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था। बहादुरी से कहते वो एक कदम आगे की तरफ बढ़ी। वो फाइक को आसानी से देख सकती थी। ठीक है, मैं इसे जाने दूंगा। उसके कहने पर मजबूर आदमी मुस्कुरा दिया, जबकि फातिमा ने चैन की सांस ली थी। अगर तुम मेरे कमरे में आओगी तब। फातिमा का चेहरा गुस्से से लाल हुआ। उसका मसला क्या है? क्या ये पागल है? कैसी घटिया शर्त है आपकी? उसके गुस्से से बोलने पर वो मुस्कुरा दिया, मक्कार सी मुस्कुराहट। गौर से सोचो और जल्दी फैसला करो लड़की, मेरे पास पूरा दिन नहीं पड़ा। बंदूक की नाल उसकी गर्दन पर रखे वो सख्ती से बोला, मेरे 3 बच्चे हैं। उस आदमी के हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने पर फातिमा ने बमुश्किल थूक निकला। वो कहाँ फंस गई थी? इतनी रात को एक गैर महरम के कमरे में अकेली। कोई भी उस वक्त मौजूद नहीं था, लेकिन अल्लाह तो था। वो सबसे छुप कर उसके कमरे में जा सकती थी, लेकिन अल्लाह से खुद को कैसे छुपाती? एक मर्द और औरत के बीच तीसरा फर्द शैतान होता है, जो कभी भी किसी को भी बहका सकता है। उसने अल्लाह से वादा किया है कि उसके बंदों को बहकाने की पूरी कोशिश करेगा, और जिसमें वो पूरी तरह कामयाब भी हो रहा था। वो बहकना नहीं चाहती थी, वो गुनाहगार नहीं होना चाहती थी, लेकिन किसी बेगुनाह को अपनी नज़रों के सामने मरते हुए भी नहीं देख सकती थी। इस गरीब के बच्चे भूखे थे, न जाने किस हाल में हो। उसने कुर्ब से आंखें मूंद ली। किस जंजाल में आ फंसी थी वो। उस गरीब आदमी की सिसकियों ने उसे उसकी सोचों से बाहर ला खींचा। मैं तैयार हूँ। उसने इल्तजाइया नज़रों से फाइक को देखा। आज रात जब फंक्शन शुरू हो जाए तब। फातिमा उसके बंदूक थामे हाथ को गौर से देखती रही। उसे क्या करना चाहिए? अपने ज़मीर का गला दबाकर उस आदमी को मरने देना चाहिए, या फिर अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर उसको और उसके मासूम बच्चों को
زندگی گزارنے کا ایک اور موقع دینا چاہیے۔ فیصلہ مشکل تھا لیکن وہ کر چکی تھی۔ تم آؤ گی یا نہیں؟ اس نے بے حد سنجیدگی سے دوبارہ سوال کیا تو بے بسی سے آنسو پونچھتی نظریں جھکا کر وہ ہاں میں سر ہلا گئی۔